خصوصی افراد روزگار پروگرام کی منظوری، 40,000 اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کا حکم، اسپیشل بچوں کے لیے رائزنگ اسٹار کارڈ برائے اسپیشل چلڈرن متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیشل بچوں کے لیے 9 الیکٹرک بسوں کی منظوری بھی دے دی۔ اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل اقدامات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خصوصی افراد روزگار پروگرام کی منظوری دے دی۔ رائزنگ اسٹار کارڈ برائے اسپیشل چلڈرن متعارف کرانے کا فیصلہ ہو گیا۔ بیمار طلبہ کے مفت علاج کا حکم بھی مل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں اسپیشل چلڈرن کے لیے پیک فوڈ کا میل پروگرام شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عیدی پروگرام برائے خصوصی طالب علم کی منظوری دے دی۔ اسپیشل بچوں کے لیے 9 الیکٹرک بسوں کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اسپیشل بچوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا ہمارا عزم ہے۔ اجلاس میں معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ پنجاب ثانیہ عاشق جبین نے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ کہا، ذہنی طور پر متاثرہ 6,500 اسپیشل بچوں کی کیٹیگری کا تعین کیا گیا۔ اسپیشل بچوں کی کیٹیگری کے مطابق نیا سلیبس تیار کر لیا گیا۔ ہر ڈسٹرکٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس میں ڈیجیٹل سمارٹ روم بنایا جائے گا۔ حکومت کا ریونیو اتھارٹی کو ہیڈ کوارٹرز بنانے کا فیصلہ۔ عمارت کی تعمیر پر 4 ارب 41 کروڑ 90 لاکھ لاگت آئے گی۔ سیکریٹری محکمہ خزانہ کی منظوری کے بعد باقاعدہ دستاویزات مرتب، 3 ارب 62 کروڑ خرچ ہوں گے، 2 ارب 30 کروڑ 90 لاکھ مختص۔ لاہور کمشنر ریٹ اور کمشنر اپیلز کے دفاتر ایک چھت تلے ہوں گے۔ صوبائی حکومت نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ منصوبے کی تعمیر 4 ارب 41 کروڑ 90 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ سیکریٹری محکمہ خزانہ کی منظوری کے بعد دستاویزات مرتب کر لی گئیں۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے لیے رواں مالی سال میں 2 ارب 30 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ عمارت پر 3 ارب 62 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، جبکہ 19 کروڑ 48 لاکھ روپے کا فرنیچر خریدا جائے گا۔ عمارت کی تعمیر سے شہریوں اور کاروباری شخصیات کو تمام سہولیات ایک ہی چھت تلے ملیں گی۔ لاہور کمشنر ریٹ اور کمشنر اپیلز کے دفاتر ایک عمارت میں ہوں گے۔ ہیڈ کوارٹر کی تعمیر سے بجلی پر دیگر اخراجات کم ہوں گے اور سیکیورٹی بھی بہتر ہوگی۔ رمضان میں بھی چکن کچن سے غائب۔ برائلر مرغی کا گوشت 730 روپے فی کلو ہو گیا۔ سرکاری نیک میں گوشت کی قیمت 595 روپے مقرر۔ اس ریٹ پر پورے شہر میں گوشت دستیاب نہیں۔ دوسری جانب پرچون میں چینی 185 روپے کلو فروخت۔ پیکنگ والی چینی 190 روپے کلو ہوگی۔ چینی کا 50 کلو کا تھیلا 8,470 روپے کا ہو گیا۔ شہر میں اشیاء خورنوش کی سرکاری قیمتوں کا اطلاق نہ ہو سکا۔ برائلر مرغی، چینی، سبزیوں اور پھل مہنگے داموں بیچے جانے لگے۔ شہری رمضان میں بھی سستی اشیاء کو ترس گئے۔ آدھا رمضان گزر گیا لیکن شہریوں کو مرغی کا گوشت سرکاری قیمت پر میسر نہ آیا۔ برائلر مرغی کی سرکاری قیمت 595 روپے کرنے کا عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ شہر میں مرغی کا گوشت بدستور 700 سے 730 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ فارم ریٹ 383 کی بجائے 450 روپے تک ملنے لگا۔ شہر میں چینی کی قیمت پر بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ 135 سے 140 روپے فی کلو گرام ملنے والی چینی اب 180 سے 185 روپے میں مل رہی ہے۔ پیکنگ والی برانڈیڈ چینی 200 روپے تک جا پہنچی ہے۔ 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 20 روپے مہنگا ہو کر 8,470 روپے کا ہو گیا۔ ہول سیل میں چینی 171 روپے میں دستیاب ہے۔ سبزیاں اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ آلو کی سرکاری قیمت 50 روپے ہے، جبکہ بازاروں میں 60 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ پیاز 50 روپے کی بجائے 70 روپے، جبکہ ٹماٹر 55 روپے کی بجائے 80 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں میں سیب کی سرکاری قیمت 280 روپے ہے، جبکہ بازاروں میں 350 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ کیلا 250 کی بجائے 300 روپے درجن، جبکہ امرود 210 کی بجائے 220 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ کھجور کا سرکاری نرخ 450 مقرر ہے، لیکن فروخت 600 روپے کلو کی جا رہی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے معمولی سا ریلیف، بجلی سستی کرنے کی تیاری۔ وفاقی حکومت کا 29 پیسے فی یونٹ کمی لانے کا فیصلہ۔ سی پی پی اے نے فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کی درخواست دائر کی۔ نیپرا نے درخواست پر 26 مارچ کو سماعت مقرر کر لی۔ میں 29 پیسے فی یونٹ کے حساب سے کمی لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی لانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ نیپرا نے 26 مارچ کو سماعت مقرر کی ہے۔ سی پی پی اے نے ماہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کمی کی درخواست دائر کی ہے۔ واضح رہے کہ ماہ فروری میں بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی بنیاد پر صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیپرا میں منظوری ملنے پر ماہ فروری کے استعمال شدہ یونٹس پر ریلیف دیا جائے گا۔ چھوٹی عید پر بڑی خریداری، بازاروں شاپنگ سینٹرز میں رش۔ عید کے قریب آتے ہی شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ مزید جانیں گے عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔
بالکल عید करीब आते ही जो सबसे अहम सिलसिला होता है वो शॉपिंग का सिलसिला होता है। मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर जो है वो रश देखने में आ रहा है। ख़वातीन की बड़ी तादाद उमड़ आती है, ख़ास तौर पर इफ्तारी के बाद जो रूटीन होती है वो मार्केट्स के अंदर होता है। तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आप मेरे देख सकते हैं रश ही रश है। क्या ख़रीदारी हो रही है, कुछ ख़वातीन से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या पसंद करने आई हैं आप यहाँ पर, और इस दफ़ा ईद पे क्या सिलवा रही हैं? अच्छा, हम यहाँ पर जो है ना वो पसंद करने नहीं आए थे, लेकिन हमने सोचा विंडो शॉपिंग की जाए और देखा जाए कि मार्केट में इस वक्त क्या अवेलेबल है। फ्रेंड्स पे तो हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी गहमा गहमी नहीं होती। आपको पता है, वहाँ पे जाएं डिसेंटली, आप शॉपिंग करें और वापस आ जाएं। तो इस तरह के जो है ना वो हमें एनवायरनमेंट भी जो है वो एंजॉय करनी चाहिए। ये एंजॉयमेंट के लिए हम यहाँ पर आए हैं और अच्छे ड्रेसेस हैं, अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, अच्छा गहमा गहमी है और ईद का आपको पता है कि अच्छा एंजॉय हो रहा है। आप अपना ड्रेस सिलवा चुकी हैं? मैं असल में उम्रे पे जा रही हूँ, तो मैंने ड्रेस तो बहुत सारे सिलवाए हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर बहुत सारे ओकेजन्स पे पहनने हैं, जैसे कि ताक रातें हैं, तकाफ करना है, वहाँ पे ज़ियारतें करनी है। तो मैंने एक ड्रेस नहीं बनवाया, मैंने बहुत सारे ड्रेस बनवा चुकी हूँ। माशाल्लाह, मतलब आप तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, इनके साथ साथ आप राइट लेफ्ट साइड पर भी देखेंगे तो ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि ड्रेसेस खरीदने आई है। ना सिर्फ ड्रेसेस है, बल्कि जिनको चूड़ियाँ पसंद है वो चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, जिनको ज्वेलरी लेनी है वो ज्वेलरी खरीद रही हैं, और जिनको जूते चाहिए वो जूते ले रही हैं। रश जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, और रात के औकात कार में ख़ास तौर पर जब रात को जो है वो 12 का वक्त होता है और मार्केट बंद होने का वक्त होता है, तो उस वक्त में भी जो है वो रश इसी तरह होता है, क्योंकि कोशिश होती है कि ईद से पहले जितनी शॉपिंग हो सके वो हो जाए। अच्छी शॉपिंग करनी है, और अच्छी शॉपिंग के लिए यही है कि ईद के इफ्तारी के फ़ौरन बाद मार्केट्स के अंदर आएँ, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीदें, और यही चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। फ़ज़ाई आलूदगी ने बागों का शहर मट्टी मट्टी कर दिया। शरह 207 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। अस्करी 10 427, DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया। मौसम ने करवट ली तो शहर की फिजा एक बार फिर आलूदा होने लगी। फिजाई आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर में मजमूई AQI 207 रिकॉर्ड किया गया। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 8 में आलूदगी की शरह 375 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 रहा, जबकि गाजी रोड इंटरचेंज एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 241 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 61% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों तक शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट का आगाज। तुलबा के साथ मुतल्लिका मजमून के टीचर का भी टेस्ट होगा। हेड मास्टर, वालिदैन और मेंबर स्कूल काउंसिल का इंटरव्यू भी कंडक्ट करना होगा। उधर कॉलेजेस में दौरान क्लास मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। हायर एजुकेशन ने डायरेक्टर कॉलेजेस और प्रिंसिपल्स को हदायत जारी कर दी। अब तुलबा के साथ असातिज़ा भी टेस्ट देंगे। स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट का आगाज हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अनोखा इकदाम करते हुए लार्ज स्केल असेसमेंट के इम्तिहान में तलबा के साथ मुतल्लिका मजमून के टीचर का भी टेस्ट लेने का फैसला कर लिया है। हेड मास्टर, वालिदैन और मेंबर स्कूल काउंसिल का इंटरव्यू भी कंडक्ट करना होगा। टेस्ट मुनक्किद करवाना स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन गया। ये तमाम काम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी में शामिल होगा। हेडमास्टर एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि सालाना इम्तिहान के साथ लार्ज स्केल असेसमेंट तलबा और टीचर और वालिदैन के लिए परेशानी का बाइस है। दूसरी जानिब महकमा हायर एजुकेशन ने क्लासरूम्स में असातिज़ा और तलबा के मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। HED के मुताबिक दौरान क्लास मोबाइल्स के इस्तेमाल से तदरीसी अमल में खलल पैदा होता है। महकमा हायर एजुकेशन ने डायरेक्टर कॉलेजेस और प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी कर दी है। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। फाजिलिया कॉलोनी में बिजली के तार मौत बनकर सरों पर मंडलाने लगे। अहले इलाका का कहना है कि हवा के चलते ही कोई न कोई तार टूटकर गलियों में गिर जाती है। करंट लगने के वाकयात मामूल बन गए। अहले इलाका ने इंतजामिया से बिजली के तारों का मसला हल करवाने का मुतालिबा कर दिया। नसीराबाद के बेनजीर पार्क में सहूलियात का फुकदान है। मुनासिब देखभाल न होने से पार्क की घास तबाह हो गई। पार्क में नस्ब झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। मकीनों का कहना है कि पार्क की अबतर हालत की जिम्मेदार इंतजामिया है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर पार्क की खूबसूरती बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। दारोगा वाला धोबी घाट स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। अहले इलाका ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नल भी नाकारा हो चुके हैं। यासिर ब्लॉक पार्क में मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा से बंद पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि रमजान के महीने में पानी की अदम दस्तयाबी अफसोसनाक है। 2 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। पीने का साफ पानी बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश के बावजूद शहर की शाहराहों पर तजावजात का राज बरकरार। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की तमाम कार्रवाइयां बेसूद।
मज़ीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन शहर की मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन शाहराह जो GT रोड के नाम से जाना जाता है और शालामार बाग के बिल्कुल सामने जो है वो अरसा दराज से तजावुज़ात की जो रेडियाँ हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पंजाब हुकूमत के मुतादिद बार ऑपरेशन के बावजूद यहाँ पर लगी रेडियाँ ताहाल मौजूद है, जबकि एंटी इनक्रोचमेंट स्क्वाड्स की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी काम ना आ सकी। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कि किस कदर यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात की भरमार है। सड़क के बीचों बीच, सड़क के दरमियान तक ये जो लोग हैं वो अपनी रेडियाँ लगाकर अपना कारोबार चमकाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जबकि जो मुसाफिर हैं उन्हें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये सड़क शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह है और शहर के मुख्तलिफ कोनों को आपस में मिलाती है, जबकि यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं वो यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें सड़क पर मौजूद तजावुज़ात की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि स्कूल के छुट्टी के औकातकार हों या दफ्तर से छुट्टी के औकातकार हों, उस वक्त ख़ास तौर पर यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार की वजह से जो शहरी हैं वो इंतज़ार की सूली पर लटकते हैं और उन्हें खासा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। शहरियों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इन तजावुज़ात का खात्मा किया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल से छुटकारा मिल सके। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। मैट्रिक सालाना इम्तिहान में जाली उम्मीदवारों की एंट्री। लॉरेंस रोड सेंटर में दोस्त की जगह पेपर देने वाला पकड़ा गया। मुलज़म मोहम्मद शाह ज़ेब की जगह इम्तिहान दे रहा था। FIR दर्ज। रियाजी के इम्तिहान में वाल्टर रोड सेंटर से जाली उम्मीदवार धर लिया गया। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में रियाजी के पर्चे के दौरान जाली उम्मीदवार रंगे हाथों पकड़ा गया। लॉरेंस रोड के इम्तिहानी मरकज सेंटर नंबर 310 में जाली उम्मीदवार अपने दोस्त मोहम्मद शाह ज़ेब की जगह पेपर दे रहा था। सेंटर सुप्रीडेंट ने दौरान इंस्पेक्शन जाली उम्मीदवार को रंगे हाथों पकड़ा। जाली उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात के सुप्रीडेंट मोहम्मद रेहान को शाबाश देते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा। दूसरी जानिब चेयरमैन टास्क फोर्स बराए तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया। वाल्टन रोड सेंटर से एक और जाली उम्मीदवार धर लिया गया। चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मल महमूद के मुताबिक प्राइवेट कॉलेज में बने सेंटर पर खुफिया इतला की बिना पर इंस्पेक्शन की। उम्मीदवार के खिलाफ अंदराजे मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी है। मेसम अली की जगह एक जाली उम्मीदवार पेपर दे रहा था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का दौरा। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद भरत भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद भट्ट ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का दौरा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तामीराती कामों का जायजा लेते हुए कहा कि कैंसर अस्पताल गेम चेंजिंग मंसूबा है जो पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। 90 अरब की लागत का ये मंसूबा है जिसकी OPD इस साल अक्टूबर में फाल हो जाएगी। नवंबर में शुरू होने वाला मंसूबा, अल्लाह के फजल से इस वक्त हम मार्च के मिड में खड़े हैं और ये मंसूबा आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि जैसे इसको शुरू हुए सालों हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के करीब बिस्तरों पर मुश्तमिल साउथ एशिया का ये जदीद तरीन कैंसर अस्पताल अल्लाह के फजल से इस साल के आखिर तक अपनी OPD जो है वो स्टार्ट कर देगा। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद भट्ट का कहना था कि अक्टूबर में OPD में कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाएगा। दिन रात मेहनत करके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मदद से, और मुझे अपने IDAP जो मेरी अथॉरिटी है, CEO साहब और उनके जितनी भी मेरी टीम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और उनके नीचे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि किस तेज़ तरीके से दिन रात मेहनत करके आपने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख्वाब को सच बनाया। 1000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर में 1000 से ज़ायद मजदूर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जबकि जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल में सराय, कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट समेत दीगर यूनिट्स बनाए जाएंगे जहां कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाएगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर इजलास। तमाम मुतल्लिका सरकारी और निजी चिल्ड्रन अस्पतालों से फीडबैक लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि लॉन्चिंग से अब तक 2870 से ज़ायद बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरीज हो चुकी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पंजाब बच्चों के हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के पूरे निज़ाम की शफाफियत को यकीनी बना रही है। भिखारियों ने शहर पर कब्जा जमा लिया। माफिया ने ईद उल फितर की आमद से कबल ही शहर पर जलगार कर दी। शहर की मारूफ मार्केटों और अहम शाहरों पर भिखारी सरगर्म हो गए। शहर की मारूफ मार्केटों जिनमें बरकत मार्केट, लिबर्टी मार्केट और क्रीम ब्लॉक मार्केट समेत दीगर अहम शाहराहें शामिल हैं, पर ईद से कबल ही बेकारी सरगर्म हो गए। एक बेकारी का कहना है कि वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भीख मांगता है और माहाना 70 से 80 हजार बना लेता है। बाकी दिन वो अपनी फैमिली के साथ गुजारता है।
ये कम से कम 700-800 रुपये बन जाता है, वो भी देखते ही हैं, वो उल्टा पकड़ के बंद कर देते हैं, वो बच्चियों का क्या बनेगा। यार मजदूर बनना की करांगा मैं, 1500-1600 1800 बन जाते थे। किसी ने कहा कि वो माजूर है तो कोई बेवा बेकारन सामने आई। कहते हैं कि कारोबार करने के पैसे नहीं, इसलिए भीख मांगकर बच्चों का पेट पालते हैं। मुश्किल है सर हमारी, बच्चियों के ना पूरे कपड़े ना हमारा कोई खाने पीने का, क्या अल्लाह है क्या खुदा है। रोजाना का सर हमारा 700-800 रुपया पौनिया लास्ट तक बेच कर, और उसमें भी खर्चा रोटी पानी नहीं होता है। कोई देवे तो कोई 200-400 ना देवे तो इतरों के कुछ भी नहीं, राशन ही नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। 1500-2000 बन जाता है। 11 बजे आता हूँ, 12 बजे जाता हूँ। मार्केट इंतजामिया की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि जो शहरी बेकारियों को पैसे नहीं देते, बेकारी उन मासूम शहरियों को बद्दुआएं देने पे उतर आते हैं। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। 2 दहाइयों में हमारे नॉस्टैल्जिया से जुड़ी बहुत सी खूबसूरत चीज़ें किस्सा पारीना बनी। ईद कार्ड की हसीन और दिलकश रवायत भी इन्हीं में से एक है। आज से 10 साल कबल रमजान मुबारक की आमद के मौके पर मोहल्लों में ईद कार्ड की खरीद और फरोख्त शुरू हो जाती थी। हर दोस्त को अपने साथी की ईद कार्ड और इस पर दर्ज अशार का इंतजार रहता था। अब ईद कार्ड की दुकानें भरी हैं, लेकिन खरीदार मौजूद नहीं हैं। ईद कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं थे जो हम अपने प्यारों को भेजते थे, इसमें छुपा प्यार और खुलूस था जो तेज रफ्तार जिंदगी में अब कहीं खो गया है। अभी भी इस शौक को जिंदा रखे कुछ लोगों का कहना है कि ईद कार्ड एक खूबसूरत रिवायत है जिसे हम नहीं छोड़ सकते। अगर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन सब ईद मुबारक वगैरह का मैसेज भेज देते हैं, उसकी वजह से अब जो सा वो रिवाज खत्म हो गया। अब वो छोटे कार्ड वगैरह बच्चों को बस देने के लिए, उनकी खुशी बांटने के लिए जो सा ना कार्ड वगैरह दिए जाते हैं। अब वो ज़्यादातर लोग ना मैसेज पे ही जो सा ना रिवर्स कर देते हैं, ईद मुबारक वगैरह मैसेज कर लेते हैं। अब मैं स्पेशल लेने हैं अपने घर वाले के लिए, छोटी बहन के लिए, दोस्तों के लिए। रिवायत तो ऐसी रहेगी, तब बचपन से हमें इसमें मिलती आ रही है। अब तो व्हाट्सएप का आगे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। ईद कार्ड भेजने वालों में मुकाबला होता था, कौन अच्छा कार्ड और तोहफा देगा। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई और टेक्नोलॉजी के बायस ये मोहब्बत भरी रिवायत दम तोड़ रही है। इस पे शेर वगैरह लिख के भेजा करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब इसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुकी हुई है। अब इसके साथ साथ देखिए, अब जैसे आजकल ये चीज़ें हैं, ये इसके अंदर ईद में वो पैसे फंसा के जो है वो टक कार्ड की सूरत में दिया जाता है। ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल अब ये ईद कार्ड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, बहुत कस्टमर आ रहे हैं। मैं वज़ीराबाद से स्पेशल लेने आया हूँ। ये कार्ड, वो बॉक्स वगैरह भी हैं, काफ़ी चीज़ें, मतलब बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, और भी बैग्स वगैरह भी हैं मेरे पास। काफ़ी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कस्टमर। टेक्नोलॉजी के शोबे में जिद्दत आने के बाद समाजी राब्तों की वेबसाइट, मैसेज, इंटरनेट के जरिए अपने हल्के अहबाब को ईद की मुबारकबाद भेज देते हैं। लेकिन ईद कार्ड पर दोस्त के लिए तहरीर किए गए सुनहरी अशार की अहमियत की जगह आज भी कोई हासिल नहीं कर सकता। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक, सवैयां पकी हैं, सबने चखी हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे लिए भी रखी हैं। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठ के देखा तो ईद आ गई। जिस तरह इन मीठे शेरों की मिठास कम नहीं हो सकती, उसी तरह डिजिटल मीडिया भी ईद की रिवायत और कार्ड की रिवायत को कम नहीं कर सकता। कैमरामैन अरसलान के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42, लाहौर। गुलबर्ग MM आलम रोड पर पार्को ग्नोर लिमिटेड के स्टॉप गर्ल लेबर मुहिम जारी है। बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से पेट्रोलियम स्टेशन पर स्टॉल लगाया गया। गुलबर्ग MM आलम रोड पर पार्को ग्नोर लिमिटेड की स्टॉप गर्ल लेबर मुहिम जारी है। CEO पार्को ग्नोर लिमिटेड आसिफ इकबाल भी बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ स्टॉल पर मौजूद रहे। स्टॉल से कस्टमर्स ने चूड़ियां खरीदी। शहरियों ने कहा पार्को के शुक्रगुजार हैं जो इस बेहतरीन काम में हिस्सा डाल रहे हैं। बेहतरीन नेकी है जो बच्चियों के लिए मुफीद साबित होगी। पार्को ग्नोर लिमिटेड की लास्ट ईयर भी एक कैंपेन थी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे की गई थी, जिसमें वुमेन को एम्पावर किया गया था। और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा गैस स्टेशन है जहां पर लड़कियों और बच्चियों के लिए मौका रखा गया कि वो इज्जत के साथ रोटी रोजी कमा सकती हैं, और उनको यहाँ पर एज अ वर्कर हायर किया गया, वो अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करी हैं। अदर देन दैट, इस साल जो कैंपेन करवाई जा रही है उसका बेसिकली फोकस ये है कि जो बच्चियाँ हैं, गर्ल एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाए। बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ हम बिलीव करते हैं, चूड़ियाँ जिसको एक हमने टर्म बना दी है वीकनेस की, हम वो परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं। एंड वी वांट टू टेल के जो चूड़ियाँ होती हैं वो स्ट्रेंथ की अलामत है। ये औरतें जो चूड़ियाँ पहनती हैं वो स्ट्रेंथ उनकी सिग्निफाई करती हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो women are very strong and we believe that when
women are empowered, a whole generation is empowered. CEO ने कहा, हमारा विजन है कि मुतासिरा लड़कियों की मदद करें, बच्चियों और माजूर अफराद के लिए काम कर रहे हैं, बच्चियों को काम छुड़वा कर पढ़ाई की तरफ ले जाएंगे। बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लेटफॉर्म का आगाज है, जिसका मकसद मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाना है। CEO आसिफ इकबाल की जानिब से लड़कियों में चूड़ियां भी तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद अधूरी। ईद पर खुश रंग नजर आने के लिए खवातीन ने मलबूसात के साथ मैचिंग चूड़ियों की खरीदारी शुरू कर दी। खवातीन के हाथों की जीनत बनने वाली चूड़ियां तैयार कैसे होती हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चूड़ियों की खनक न हो तो ईद की मिठास कुछ अधूरी सी लगती है। रंग बिरंगी और मुनफिर डिजाइन की चूड़ियां आज भी मशरकी रवायात का हिस्सा हैं। ये रंग बिरंगी चूड़ियां देखने में जितनी पुरकशिश लगती हैं, उतने ही कठिन मराहिल से गुजर कर तैयार होती हैं। चूड़ी बनाने के लिए एल्यूमिनियम की तार को गोलाई में काटने, मशीन से डिजाइन बनाने और चूड़ियों को रंगने का काम कारीगर निहायत नफासत से करते हैं। चूड़ियों पर नक्शोनिगारी के लिए इसे मुख्तलिफ हाथों में भेजा जाता है और यूं 10 से 12 कारीगरों की मेहनत से चूड़ियां तैयार होती हैं। पहले तार होती है, तार को हम गोल शेप में लेके आते हैं, उसके बाद इसको इधर लाते हैं, इधर ला के इसको डिज़ाइन डालते हैं, डिज़ाइन डाल के इस पे फिर रंगाई होती है। रंगाई डिज़ाइन भी 3-4 किस्म के डलते हैं। उसके बाद रंगाई होती है, रंगाई होके नाग वगैरह लगते हैं, नाग लग के फिर इसको हम लेके आते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं, पैकिंग करके डब्बों में फिर हम इसे मार्केट देते हैं। फैक्ट्री मालिक नुमान इजाज ने कहा, चूड़ियां खातीन के बनाव सिंगार का बुनियादी जुज्व हैं, इसीलिए रमजान से एक माह पहले ही चूड़ियां बनाने के काम में तेजी आ जाती है। बहुत ही मेहनत वाला काम है। तकरीबन ऑलमोस्ट एक चूड़ी जो है 10 से 12 कारीगरों के हाथ में से निकल के आती, तब जाके ख़वातीन के हाथों की जीनत बनती है ये। और जाहिर सी बात है, ईद आपको पता ही है, तो लड़कियों की ईद तो चूड़ियों के बगैर अधूरी होती है। तो इन दिनों में वैसे ही हमारा काम बहुत तेज़ होता है और मोस्टली हमें डिमांड यही आती है कि न्यू से न्यू डिज़ाइन बनाए जाए। खातीन का कहना है कि चूड़ियों के बगैर ईद नामुकम्मल है। कपड़े लेने आई हूँ, चूड़ियाँ खरीदने आई हूँ। आपको पता है ईद जो चूड़ियों के बगैर फजूल है। लड़कियों के लिए ईदी तभी अच्छी लगती है जब चूड़ियाँ हों, अच्छे कपड़े हों, मेहंदी हो। विदाउट चूड़ियाँ, विदाउट मेहंदी तो जचती नहीं है ईद। चूड़ियाँ लेने आई हूँ अपने सूट के साथ मैचिंग की। सूट के मैचिंग के बगैर चूड़ियाँ तो मतलब ईद इसके बगैर नामुकम्मल सी लगती है। टिम्बर मार्केट में तैयार होने वाली चूड़ियाँ लाहौर समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख्त की जाती हैं। मुख्तलिफ शहरों और देहातों के 10 से 12 कारीगरों की मेहनत से तैयार होने वाली ये रंग बिरंगी और खनखनाती चूड़ियाँ ईद पर खातीन के हाथों की जीनत बनने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा समरा फातिमा, लाहौर।